Very good evening, everyone. Very good evening, Komal ma'am. And thank you for all the coordination and support from your side to conduct this session. Thank you, ma'am. Komal ma'am, I would request to take a few pictures and videos from your side as well. Okay, ma'am. If possible, on geotag would be really great. Panditji, are you there? Yes, madam. Okay. Komal ma'am, as you suggest, we can commence the session. Sunil Kumar. Komal ma'am, kindly confirm, is the presentation visible to everyone? Yes, ma'am, it is visible. Okay. Komal ma'am, please start the session formally. With your Okay, permission sir. and the Okay, sir. Thank you. slot, can we commence? Very good evening, everyone. All the see Bhagwan, sir. Please ma'am, start the session. Okay, sir. Okay. Thank you. A very warm good evening to our esteemed speaker, dignitaries, faculty members, and all participants joining us today. On behalf of Gurudev Paramedical College, National Stock Exchange, and Gyanansi LLP, I, Komal Singh, HOD of BHM Department, welcome you all to this insightful session on financial literacy, learn, plan, invest, and grow. Gurudev Paramedical College is a private healthcare and allied health science institute located in Patna, Bihar, run under Gurudev Educational Trust. The institution focuses on developing skilled healthcare professionals, technicians, and healthcare managers to support the medical and allied healthcare sectors. The college offers undergraduate degrees, diploma, and certificate programs across paramedical science, nursing, and hospital management. The National Stock Exchange of India Limited (NSE) is India's leading stock exchange and one of the largest financial institutions globally. Gyanansi LLP is an educational and skills development organization dedicated to spreading knowledge and professional training across various domains. As reflected in their motto, Empowering Through Knowledge, Gyanansi LLP specializes in conducting workshops, professional certificates, and capability building programs. Gyanansi LLP serves as a corporate training and outreach partner that collaborates with recognized body and academic institutions to bridge the gap between classroom academics and practical market skills. Managing finances, understanding stock markets, fundamentals, and making smart investment decisions are essential life skills for everyone, whether you are a student, faculty member, or professional. Today's workshop is designed to empower each of you to take confident, informed steps towards a secure financial future. To lead us through this session, we are honored to have a distinguished expert in the field of financial markets and education. Please welcome our keynote speaker, Dr. Bhakti Moolchandani.
She is an accomplished academician, author, and corporate trainer with 14 years of experience spanning higher education, financial markets, investor awareness, and professional development. Holding a PhD degree in financial management and MBA in finance and dual MCOM degrees. She is dedicated to bridging the gap between academic theory and industry practice through learning and resource driven education. Without further delay, let us begin our journey toward financial empowerment. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much, Komal ma'am, for the wonderful introduction about Gyanashi LLP and about me. I have never ever thought such a great introduction will be coming from your side. My lovely students, I think so we can send an emoji to Komal ma'am and to principal sir for allowing us to conduct these sessions. And as per NEP, ideally, we need to bridge a gap between the corporates and colleges, and this is how both of them together are thinking for you in a positive manner so that the students should learn out of the classroom. Komal ma'am, just I want to ask you, Yes, is this ma'am. question completely in English okay, or it should be a mixture of Hindi and English? Because Ma'am, I it's really good, ma'am. Next, Hindi or English. okay, perfectly fine, perfectly fine. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Yes. We can quickly commence with the session. Before commencing with the session, of course, I would thank our MII, which is National Stock Exchange. So as ma'am rightly said, I'm a corporate trainer. So I conduct sessions under Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, NISM, NCFE, all the AMCs, CDSL, NSDL. So these are the different corporate trainers which are directly or indirectly related to capital markets, which is share market. So I have multiple levels of sessions always coming into a picture, and this is how I conduct the sessions. So I am conducting these sessions since almost 8 years. I'm in teaching profession since last almost 14 years down the line. I work with HR College. And in last 8 years of my training, I have taken sessions, almost 1,000 plus sessions now I have taken. So the sessions is all over India. So it is not restricted to Maharashtra or Gujarat or something. It is all over Maharashtra. We conduct sessions online, offline, for the students and also for the self-help groups, even for the corporate. So there are 3 multiple layers at which we always conduct the sessions. And yes, Pandeyji, Tirthraj Pandeyji is there from Gyanashi LLP, who take cares in the background, all the coordination, all the support, connecting with your coordinators and principal and finalize these kind of lectures. So thank you to him as well as for smooth conduct of the session. Okay. We'll continue quickly with the session now. I hope the presentation is visible to everyone. Okay, my lovely kids out there, we are commencing with a session named as Financial Literacy, Parichay of Financial Literacy. ये सबसे पहला लेवल है फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है. बहुत ही सिंपल मतलब है, हाउ टू मैनेज योर मनी वाइजली. आप अपना पैसा किस तरह से मैनेज करते हैं उसको फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं. The definition is very simple, but it is yet complicated to inculcate in your life. उसको अपनाना बहुत कठिन होता है. अब हम लिटरेट तो हो जाते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड सरकार की तरफ से, बट क्या हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं वो आज हम जानेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. ओके, be with me. You can unmute yourself, you can ask the questions. I am okay to go ahead with it.
आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे. Okay. I will run through with this presentation in 6 different departments. The very first one is the 6 pillars of financial literacy. Second is need versus wants versus desire. Third one is I will tell you a budgeting rule which is named as 50-30-20. Then sutras of investing I will teach you. Then about mutual funds, and then what kind of frauds are there in the market, and how you people can avoid this. These are the 6 parameters which we are going to learn, understand in a complete presentation. Okay, here comes the most important topic. Full world is running behind this. Full complete world is running behind this particular topic, right? This is called as money. We are running behind it all the time. Now, I will write a simple formula. I hope the screen is visible to you people. I'm writing on the screen. Is it visible to you? I'm writing a small formula in front of you. Income minus expenses is equals to savings. This is what we are inculcating since years. Whatever income you pay. Is the formula visible, everyone? बच्चा, you can unmute yourself. Formula दिख रही है आपको सामने? बिल्कुल. Yes, ma'am. Okay, perfectly fine. Yes, ma'am. Till now, you are a student. Ma'am, as a student, from where I will get the income? As per my information, you people get pocket money, right? That is to be considered as your income if you are not earning. There are students who have started earning at the age of 14, 15, 16 as a content creator, as a YouTube influencer, as an Insta influencer. They are writing articles for newspapers. There are multiple things who students are doing it. So those who are doing it, they already have income. And those who are not doing it, you are getting income as a pocket money from your family member. So till now, you people are adopting one formula which is named as income minus expenses equals to savings. राइट सब लोगों को मिलते हैं पॉकेट मनी. Yes, ma'am. वेरी गुड. अब हमको एक छोटा सा चेंज लाना है अपनी लाइफ में. वो चेंज करेंगे तो ही आगे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. हमको क्या चेंज लाना है? इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस. Whenever I get an income in my hand, I should pre-plan कि पैसे निवेश करने कहाँ पे हैं. जब तक मैं प्री प्लान नहीं कर सकती, तब तक मैं अपनी आगे लाइफ को बढ़ा ही नहीं सकती. तो मुझे प्री प्लानिंग अपने पैसों के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जिस दिन मुझे पॉकेट मनी आती है, उसी दिन मैंने सोच लिया है कि मुझे इसको निवेश करना कहाँ पे है. दिस इज व्हाट अ स्मॉल चेंज I want to bring in your life during this session. Let's continue. Yes, money does not buy happiness, but money buys choices. The choice is always in your hands. Whether you want to save a little amount of money, whether you want to spend complete amount of money, whether you want to invest a small amount of money, choices are always and always yours. Let's commence with the 6th pillar of financial literacy. I think so one of the student, can you bacha please mute yourself? There's a lot of noise behind. हो गया. Okay, thank you so much. So there are 6 pillars of financial literacy. The very first was income. I will explain slowly and gradually each one of them. Expense, tracking and budget, saving, investing, and debt. The very first one is income. Now, my lovely students,
आप जो भी कोर्स कर रहे हो, आप इस उम्मीद से कर रहे हो कि जैसे ही मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, I will start having active income. I will start having active income. Now, active income, what do you mean by active income? Active income means जब हम अपनी कोई स्किल, अपना टाइम किसी चीज के लिए देते हैं to earn money. Whenever we give a time period और अपनी कोई स्किल यूटिलाइज करते हैं हम, और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम. अब एक्टिव इनकम 3 तरीके से हो सकती है कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो तो आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको अपना बिजनेस है, तो आपको मिलेगा बिजनेस इनकम. ओके, आपको क्या मिलेगा बच्चा? बिजनेस इनकम. तो इन तीनों चीजों के लिए मुझे अपना समय देना पड़ेगा, अपनी स्किल यूटिलाइज करनी पड़ेगी. शायद आप कॉलेज में अपनी स्किल को ही एनहांस कर रहे हो, आपके ही कॉलेज में 60, 80, 90 जो भी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, कुछ शायद किसी कंपनी के अंडर काम करेंगे, कुछ शायद अपना कंसल्टिंग फर्म ओपन करेंगे, और कुछ शायद बिजनेस ओपन करेंगे. तीनों तरीके से वो एक्टिव इनकम होता है, क्योंकि आपने तीनों तरीके में अपने स्किल को यूज किया है. और वही सीखने आप कॉलेजेस में आते हो, वही सीखने के लिए आपको डिग्रीज की जरूरत होती है. लेकिन इसमें क्या होता है, यू वर्क फॉर मनी, आप पैसे के पीछे दौड़ते हो कमाने के लिए. नाउ मूविंग टू द अदर साइड ऑफ द इनकम व्हिच इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम. यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, मनी वर्क्स फॉर यू. पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते. अब मैम वो कैसे हो सकता है? देखो, मेरे को सैलरी मिली 30,000 रुपीज, उसमें से मैंने सोचा 3,000 रुपए मैं निवेश करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी. मैंने इन्वेस्ट किए इक्विटी मार्केट्स में, या मैंने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स में. अब क्या हो रहा है, मैंने इक्विटी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में जब पैसे निवेश किए तो मुझे वहां से डिविडेंड भी मिलता है. क्या मैं उसके लिए काम कर रही हूँ? क्या मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि मुझे पैसे शेयर्स में निवेश करने हैं. अब देखिए, मैं और एक चीज आपको दिखाती हूँ. देखिए, मैंने 30,000 रुपए निवेश किए, इन्वेस्ट किए, ओके, किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स में. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 शेयर्स खरीदे, जिसका प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है 300 रुपया, और टोटल मैंने 30,000 रुपए निवेश किए. राइट. अब जब मैंने निवेश किए थे, वो डेट था, सपोजिशन वो डेट था 1 जून 2026. डेट क्या था? 1 जून 2026. ओके, ये देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है. 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल्स टू 30,000 मैंने इन्वेस्ट किए 1 जनवरी 2026. राइट. अब चल रहा है 21 जुलाई 2026. ड्यूरिंग दिस पीरियड ना, इसका शेयर प्राइस पता है क्या हो गया? इसका शेयर प्राइस बढ़ गया, वो 300 के जगह हो गया 400 रुपए. क्या हो गया बच्चा? वो 300 की जगह क्या हो गया? 400 रुपीज. How much it is now? 400 rupees. So now you have invested 100 shares in 100 shares, and that the price of 100 share is now 400, right? So 100 multiplied by 400 equals to 40,000. Equals to what? 40,000. Now automatically वही शेयर्स 30,000 के कितने हो गए? 40,000 रुपए 2 महीने के बाद. मैंने इसके लिए कुछ काम किया क्या? मुझे कोई जॉब करना पड़ा 9 to 5? या मुझे इसके लिए कोई स्किल चाहिए क्या? स्किल चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मुझे पैसे कहाँ डालने हैं. एम आई वर्किंग फॉर दिस कंपनी जहां पे मैंने पैसे निवेश किए हैं? नहीं.
बट तो भी इसकी प्राइस क्या हो गई बेटा, इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब भी पैसा आपका जो आइडल पड़ा हुआ है वो आपके लिए काम करना शुरू करता है, तो उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। और लोग इस इनकम को हमेशा यूटिलाइज करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, व्हेन यू पीपल आर नॉट अर्निंग। गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट की सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक, वी हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 79 years, but our retirement age is 60 years. 60 to 79, who's going to take care of me? Would be I dependent on someone else, or else I should start saving now and I won't be dependent on someone. I have good amount of money with me कि मैं अपना टेक केयर खुद कर सकती हूँ। या इंस्पाइट में रिटायरमेंट की बात भी नहीं करूंगी। Nowadays अगर आपने मेडिकल इमरजेंसीज देखी हैं, एनी टाइम इट इज हार्ट अटैक, एनी टाइम इट इज कैंसर, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग अक्रॉस। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी रिटायरमेंट 60 भी ना हो, शायद 45 एज में ही हो जाए। रीजन बीइंग, इफ यू आर नॉट मेडिकली फिट तो कंपनीज रखना भी प्रेफर नहीं करती है। तो अगर मैं मेडिकली फिट नहीं हूं तो शायद ये मुझे डिजीज 45 ईयर्स में भी आ सकती है। तो देन अगर मुझे ये डिजीज 45 ईयर्स में आ गई तो मुझे रिटायर 45 में होना पड़ेगा। और 45 to 79 बहुत लंबा पीरियड है, 30 साल 35 साल का। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी? Nowadays the culture in India is we are turning towards nuclear families. Nobody is going to take care of us. So we need to generate the passive income, understanding the current scenario. Got the point, bacha? Understood with the help of example. Shall we proceed ahead? The next pillar is your expenses. There are two different kind of expenses. One is mandatory, जो जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो करने ही पड़ेंगे खर्चे, उसको हम लोग नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। और ऐसा एक एक्सपेंस है जो हमारी वांट्स एंड डिजायर्स को पूरा करता है। दोनों को मैंने अलग क्यों लिखा है, क्यों ये दोनों एक्सपेंसेस अलग है? हम दोनों को मिक्स नहीं बना सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एक इंटरव्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम और सारे न्यूज चैनल्स में भी एक लेडी का इंटरव्यू आया था दिसंबर 2024। अब उस लेडी का इंटरव्यू आया था रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब वो इंटरव्यू लिया गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी पूरी जर्नी पूछी गई, हाउ वाज द जर्नी। सो देन she told that I have cleared my 12th standard long back. And once I got married at the age of 25. At the age of 25, she got married. And she's not working for any company. She don't have any active income. She's not working for any company, neither she's getting professional fees, neither she is having any kind of business, no active income at all. But she was very pro in terms of passive income. कैसे? मैम कमाती नहीं है, इनकम ही नहीं है, passive income कैसे आया? When she got married at the age of 25 in the year 2001 till 2002, she realized कि भाई जितना भी सैलरी मेरे हस्बैंड का आता है, एक्चुअली हम देखें तो पूरा वो हम स्पेंड कर लेते हैं। वी आर नॉट सेविंग अ सिंगल पेनी। तो इससे तो आगे चल के लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी। तो व्हाट इज टू बी डन विद दैट? देन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ हाउसहोल्ड बजट। This much grocery is required, this is the electricity bill, this is something I have to pay for maid, this is something I have to pay for so and so. Every category of expense which can happen in a month, she have prepared that. Even she have prepared कि हमारे fixed expenses, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं आपका मोबाइल रिचार्ज करवाना, आपकी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो अनअवॉइडेबल है, वो आपको करने ही करने हैं। और कुछ कुछ एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल हैं जो नीचे ऊपर होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है?
समर्स में ज्यादा आता है, विंटर्स में कम आता है. So this is variable in nature. उसने हर एक पॉइंट नोट डाउन करके रखी. इवन उसने अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस भी नोट डाउन करके रखी कि हम मंथली एक बार शॉपिंग जाएंगे, मंथली हम 2 बार होटल्स जाएंगे. उसने हर एक चीज को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया. She has started preparing the household budget so appropriately. And then she have discussed this with her husband. Both have wisely took a decision. Okay, you take care of house, I will give you amount of money which you require. And then once husband provide her a amount of money, she was very cautious कि भाई पैसा कहाँ यूज करना है, पैसा कैसे यूज करना है. She became very 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 cautious, very cautious कि पैसा कहाँ कहाँ अपने को यूज करना है. बहुत कॉशियस हो गई और कोशिश करती थी कि मैं पैसे कम से कम इस्तेमाल कर पाऊं. होटल अगर महीने के 2 बार नहीं गई, 1 बार गई. हर महीने शॉपिंग करना जरूरी नहीं है, ऑल्टरनेट मंथ्स में शॉपिंग करते हैं. तो अपने वांट्स एंड डिजायर्स को, अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को उसने लोअर डाउन करना शुरू किया. और इससे क्या हुआ, उसको मंथली कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000 उसके पास पैसे सेव होने लगे. और वो सेव करके क्या करती थी, वो सेव नहीं करती थी क्योंकि सेव करने से पैसे कभी भी बढ़ते नहीं है. So what she used to do it, she used to invest. उसने एक कंपनी है जिसका नाम है विप्रो, उसमें निवेश करना शुरू किया. एवरी मंथ रिगरसली, ऐसा कोई भी महीना नहीं था कि उसने निवेश नहीं किया. कभी कम होते थे पैसे, कभी ज्यादा होते थे, बट वो शेयर्स खरीदते जाती थी. उसने कभी भी शेयर्स को विड्रॉ ही नहीं किया, हमेशा खरीदती रही शेयर्स. एंड जब 2024 दिसंबर में उसका इंटरव्यू लिया गया, उस लेडी आवाज रुक गया है. कुछ नेट प्रॉब्लम होगा, चालू हो जाएगा सर. आवाज नहीं आ रहा यस है। सर. सर आवाज नहीं आ रहा है। कभी भी नेट प्रॉब्लम हो जाता है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो। आवाज नहीं आ रहा है। वेट करिए, आएगा आवाज. आवाज नहीं आ रहा है। कुछ दिख भी नहीं रहा है सर. कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. नहीं शो कर रहा है. 5G कनेक्शन रखिए. अरे वो लोग जिप मार Here, दिए. wait a minute. Once again, ma'am joined and start the session. We'll wait for a minute. Okay, I am back again. Sorry, there is a technical glitch at my side. There's a technical glitch at my place, I think so. That's why I got disconnected. I will restart the things all over again. I hope my voice is pretty audible to you. यस मैम. यस मैम, क्लियर आ रहा है. Is the Yes, ma'am. presentation visible? यस मैम. यस मैम, peaceful। Perfectly fine. यस. Continue. Okay.
Okay, okay. Thank you so much. Now you people can mute yourself. Okay, perfectly fine. Okay. So that lady kept on investing, and as per SEBI's rule, if you have more than 1% of stake, 1% से ज्यादा अगर किसी कंपनी के शेयर्स आप होल्ड करते हैं, तो आपको हर एक एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AGM भी बोलते हैं, कंपनी को सारे शेयर होल्डर्स जो 1% से ज्यादा होल्ड करते हैं उनको मीटिंग्स में बुलाना पड़ता है. उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसका 5 स्टार होटल में स्टे कॉस्ट सारा कंपनी बेयर करती है. और उस लेडी को ईयरली डिविडेंड ही 16 लाख रुपए मिलता है. 16 lakh rupees yearly dividend उसको मिलता है. So that is passive income. She have just concentrated on passive income as well. What you need to do, you have to cut down your wants and desires to earn passive income. Then only it is possible. Otherwise, it is difficult in nature. And this is very inspiring story, which was there all over around the news channels in December 2024. That financial literacy can be given at any age. If I'll talk about Warren Buffett, who is the king of share market, he has a quote. I started investing at the age of 11. Still, I believe it's very late. Warren Buffett, जो दुनिया का 5वां richest इंसान है, उसका कोट क्या है कि मैंने निवेश करना शुरू किया जब मैं 11 साल का था, और फिर भी लगता है मुझे बहुत लेट हो गया है. और इसी वजह से NEP के अंडर अगर आप देखेंगे तो 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाया जा रहा है. क्योंकि अगर बचपन से इनकलकेट होगा तो वो अपने वांट्स एंड डिजायर्स को कम कर पाएंगे. वरना बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं वर्ल्ड में जहां पे हम स्पेंड कर सकते हैं. आपको आगे के एग्जांपल्स के थ्रू मैं वो भी समझाऊंगी. ओके, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने जो बता पाएगा कि कुछ चीजें हैं ना, कुछ नीड्स और वांट्स हैं. लोग समझते हैं ये नीड है, बट वो एक्चुअली नीड नहीं होती है, वो आपको लगता है वो नीड है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं, रोहन्स न्यू वीडियो गेम. नाउ एज अ स्टूडेंट, एज एट द एज ऑफ 16, 17, 18, आपको हमेशा लगता है आपका मोबाइल फोन, आपका 2-व्हीलर, आपका वीडियो गेम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको हमेशा उस एज पे लगेगा, एंड व्हेन पेरेंट्स से नो तो आपको बुरा लगता है. बट अगर देखा जाए, अगर आप उस मोबाइल फोन को यूज करके आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप बट अगर आप उसको सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए यूज कर रहे हैं और फ्रेंड्स को व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो अर्जेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उसको हम शायद महीने बाद, 1 साल बाद भी बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और Amazon बिग बिलियन सेल बेटा आजकल है ना, महीने में सिर्फ दिवाली में नहीं आता. अब आप देखेंगे तो सारे बिग बिलियन सेल्स पूरे साल भर चलते हैं. साल में बट 350 डेज आपके सारा टाइम ये सेल ऑफर्स चलते ही रहते हैं. कुछ कुछ चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीजों को हम टाल सकते हैं कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद लिया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको प्रायोरिटाइज खुद करना है अपने एक्सपेंसेस को. अब आता है बजटिंग. द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस इज टू क्रिएट बजट. जब तक आप अपने इनकम का बजट नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी भी निवेशक नहीं बन पाएंगे. आपको बहुत रियलिस्टिक बजट बनाना है. जैसे कि अगर आपको, राइट डाउन ओवर हियर वंस अगेन, सपोजिशन आपका सैलरी है 35,000. अब इस 35,000 में से मैं आपको सिर्फ निवेश करने के लिए बोल रही हूँ 10%, जो कि होता है
3,500। आप समझिए कि आपका सैलरी 35,000 है ही नहीं, आपका सैलरी है 31,500। आपने पहले ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया, क्योंकि बाहर की दुनिया आपके ब्रेन को ट्रेन करे, इससे बेटर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर दें कि भाई मेरी सैलरी ही 31,500 है, क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सैलरी 3,500 रुपए मेरे ऑटो डिडक्ट होके मेरे इन्वेस्टमेंट्स में चले जाने चाहिए। ये मेरा रियलिस्टिक प्लान है, ये मेरा रियलिस्टिक बजट है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं 90% निवेश करो? ये रियलिस्टिक होगा क्या? आप बोलोगे कि मैम ये कैसे रियलिस्टिक है, मुझे मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे ग्रोसरीज घर के लिए लाना होता है, मुझे अपने छोटे भाई बहन को देखना होता है, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस करवाना होता है, मैं ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस के खर्चे, आने जाने के ट्रैवलिंग खर्चे होंगे। कैसे रियलिस्टिक है? नो, नेवर एवर। तो इसकी वजह से कभी भी आप अपनी जब भी सैलरी अर्न करना शुरू करो बेटा, तब आप कोशिश करना कि आप उसका 10% हमेशा निवेश करो। ये रियलिस्टिक, ओके मैम। ये रियलिस्टिक होगा। तो आपका बजट वैसे बनना चाहिए कि मेरे को पैसा है ही 31,500, अब उस 31,500 में मुझे सारे कैसे एक्सपेंसेस को फिट करना है। तो मैंने क्या किया, अपने ब्रेन को पहले ही ट्रेन कर दिया। नहीं तो क्या आएगा ना, पूरी वर्ल्ड ट्रेन करेगी। बताइए कैसे करती है पूरी वर्ल्ड ट्रेन? सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिवाली, न्यू ईयर, होली, कोई भी फेस्टिवल ले लो, ओके, आई वांट टू सपोजिशन आई एम गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मुझे है ना 2 ड्रेसेस खरीदनी है, एक सैंडल खरीदना है, 3 चीजें मुझे खरीदनी है, 2 ड्रेसेस, एक सैंडल। मैं कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गई, मुझे ड्रेसेस अच्छी लगी, मुझे सैंडल अच्छा लगा, मैंने अपना उसको कार्ट में ऐड कर दिया, और कार्ट में ऐड करने के बाद उसका एक्सपेंस है 3,000 रुपीज, और वो दिखा रहा है कि वी आर गिविंग यू 50% ऑफ डिस्काउंट। तो एक्चुअली है 6,000 का, लेकिन 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो 3,000। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज डंप, पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। उसकी ओरिजिनल प्राइस ही बेटा 3,000 रुपए है, बट क्योंकि वहां पे लिखा होता है 50% डिस्काउंट, क्योंकि हम एमआरपी के ऊपर बेच नहीं सकते हैं, ये सरकार का रूल है कि आप एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते, लेकिन एमआरपी के नीचे आप कितना भी बेच सकते हो। तो मैंने एमआरपी चिपका दी 6,000 रुपया और दे रही हूँ तुमको 3,000 रुपया, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यूएशन ही 3,000 है। तो ये स्ट्रैटेजी है पंप एंड डंप, उसको बोला जाता है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी, जो कि सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अप्लाई करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी करने के बाद उनका एक दूसरा स्ट्रैटेजी है, मैंने 3,000 रुपए के ये प्रोडक्ट्स अपने ऐप में डाले, कार्ट में डाले। अब हम तो स्टूडेंट है मैम, हमारे पास तो 3,000 रुपए नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, आप अपने मॉम को पूछोगे, डैड को पूछोगे, दादू दादी को पूछोगे कि पैसे दे दो, मुझे ये खरीदना है, और उन्होंने आपको डांट लगा दी कि ये फालतू की चीजें नहीं खरीदनी है, और आपने क्या किया, बहुत सैड होके आपने उस ऐप को बंद कर दिया। अब ऐप को बंद करने के बाद आप भूल गए कि छोड़ो जाने दो, मॉम डैड पैसे ही नहीं दे रहे तो खरीदेंगे कहाँ से, आप उसको भूल गए, ओके। और जब शाम हुई तो आपने सोचा चलो थोड़ा सा हम टाइम पास कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, सो आपने ओपन किया इंस्टाग्राम रील्स, और रील्स आप जब उसको चेंज कर रहे थे तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है उन्हीं 3 प्रोडक्ट्स का जो आपने ई कॉमर्स के कार्ट में डाल के रखे थे। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। हमको जब भी किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो हम उसको बार बार दिखाएंगे ना तो वो अट्रैक्ट होगा। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम के रील्स के बीच में ही उसको दिखा दिया, तो मेरा इच्छा और बढ़ गया उसको लेने के लिए। फिर मम्मा की डांट याद आ गई मॉर्निंग में जो दी थी मम्मी ने, फिर से हमने क्या किया, इंस्टाग्राम रील्स को छोड़ो मत देखते। फिर आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे भी आपको पॉपअप नोटिफिकेशन उन्हीं 3 प्रोडक्ट्स का आता है, फिर आपने वो भी बंद कर दिया। फिर आपने सोचा कि चलो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे जाते हैं, फिर आपने क्या किया, जब आप देखने लगे तो जब उनके वीडियोस के बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, वो एडवर्टाइजमेंट भी मुझे इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स के बारे में दिखा रही है।
आपने यूट्यूब भी बंद कर दिया, आपने सोचा चलो मैं फ्रेंड्स के साथ गेम खेलता हूँ। गेम कौन सा? ऑफ कोर्स मोबाइल गेम्स भी, आप लूडो भी खेलते हैं, बहुत सारी चीजें गेम्स खेलते हैं। तो आपने गेम खेलना शुरू किया और अब गेम के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो भी इन तीनों प्रोडक्ट्स के बीच बारे में ही आती है। तो आपको मल्टीपल लेवल्स पे तोड़ा जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप ये तीनों प्रोडक्ट्स खरीदो। इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। दे आर प्लेइंग विथ योर ब्रेन। If you will not train your brain, they will train your brain then. You have to decide. They can drag your brain or you have to train your brain prior to that. And उसके बाद भी अगर आपका कंसिस्टेंस एंड पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपने फिर भी नहीं खरीदा, तो वन डे आफ्टर दे विल सेंड यू अ व्हाट्सएप मैसेज कि आपने जो कार्ट में प्रोडक्ट्स डाल के रखे हैं, वी विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। And now, for sure, you will throw tantrums at your home. आप जिद करने लगोगे अपने घर पे कि मुझे खरीद के दो, मतलब दो। अब उसकी वजह से तुम्हारे मॉम डैड का बजट बहुत हिल जाता है जो उन्होंने थॉट करके रखा होगा। तो शायद आपको तीनों चीजें ना लेके दे, लेकिन आप दो चीजें से उसमें से जरूर लेंगे। तो शायद वांट भी नहीं है आपकी, जो आपकी नीड भी नहीं है, बट वो आपकी डिजायर है। वो बस आपको चाहिए क्योंकि आपके फ्रेंड ने खरीदी है, तो मुझे भी फ्लेक्स करने के लिए वो चाहिए। तो अगर आप ऐसे लाइफ जीना चाहते हो तो आप कभी भी बजट बना ही नहीं पाओगे। क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वरना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और बढ़िया वाले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी आंसर्स देंगे। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस की स्लाइड बनाई है, आई विल शो यू दैट। ये देखिए, ये आपकी क्वेश्चंस की स्लाइड है। बिफोर दैट मैं एक छोटा सा बजटिंग रूल 50-30-20, आपकी जो भी सैलरी है उसको इस रूल के मुताबिक डिवाइड इस रूल के मुताबिक डिवाइड कीजिए कि 50% ऑफ द सैलरी आपकी नीड्स में जानी चाहिए, जो कि है ग्रोसरी, यूटिलिटी, हाउसिंग। बच्चा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ दिख नहीं रहा मैं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। 50% आपकी नीड्स एंड वांट्स में, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे एक 5 स्टार होटल में जाना है डिनर करने और उसकी वजह से मैं 29 डेज खाना नहीं खाऊंगी। Am I right? You cannot do like that. I cannot avoid my needs. Wants, yes, there are certain wants also. Shopping, dining out, hobbies. मैं रोज डाइनिंग आउट नहीं करूंगी, रोज होटल नहीं जाऊंगी, बट वंस इन अ मंथ मेरी भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मुझे भी सबके साथ नेटवर्किंग बनाना है। तो हाँ, मैं मंथली वंस जाना प्रेफर करूंगी, छोटी छोटी शॉपिंग करना प्रेफर करूंगी। और मेरी हॉबीज भी है, लाइक मेरी हॉबी है फुटबॉल, मेरी हॉबी है क्रिकेट। तो मैं कोई क्लब मेंबरशिप ले लूंगी जहां पे मैं उसको एंजॉय भी कर पाऊँ, अपने पैशन को कंप्लीट भी कर पाऊँ। और 20% आपकी सेविंग्स है। अब ये 20% सेविंग्स कब होगी? मैंने तो आइडियली आपको 10% पहले बोला था। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप अपना बजट प्लान करने लगोगे ना, आप जरूर इसको 20% तक रीच कर पाओगे। ओके, नाउ क्विकली क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ यू पीपल कैन अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर्स। बताओ सैलरी क्या है, एक्टिव इनकम की पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम। Active income. Very good. I got the right answer. Next one. The first step in managing your income and expense is to create a dash. Yes. पहला स्टेप इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए को क्या बोलते हैं? बजट। ये देखिए पहला पॉइंट, the first step in managing income and expense is to create a budget. बजट के बिना एक्सपेंसेस एंड इनकम को मैनेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम, क्विकली। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ Purchasing stock market, stocks. डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंट। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने इसको रेंट आउट किया, आई एम नॉट वर्किंग फॉर इट,
That property is working for me. The money invested in the property is working for me, and I am getting rent onto that. Then what is the difference between wants and desires? Bolo? What is the difference between wants and desires? Wants are something which we need to keep with us to enhance our standard of living. Desires are avoidable things. The more you avoid, the more amount of money you can keep with you. Then we have rent is a discretionary expense or non-discretionary expense? Tell me quickly. Rent क्या है? Discretionary expenses है कि non-discretionary expense है? Dispensary. अगर मुझे रेंट भरनी है तो डिस्क्रिशनरी है कि नहीं है? नीड है ना, घर तो चाहिए ना. अगर मेरे पास अपना घर नहीं है, मुझे रेंट पे करना है तो करना ही पड़ेगा ना. ये तो मेरी नीड हो गई ना. अब देखो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है ना. अगर रेंट मुझे भरनी है तो मेरी बेसिक नीड हुई ना. बेसिक नीड्स हम लोग बोलते हैं ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर आर माय बेसिक नीड्स. तो शेल्टर इज अ बेसिक नीड. मेरे पास अपना घर नहीं है, मुझे रेंट पे रहना है, तो इट्स अ बेसिक नीड. सो इट्स अ नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस. एक्सपेंस पूछा है, इनकम नहीं. बहुत सारे लोग मिक्स कर रहे हैं. रेंट अभी सुना तो रेंट को आप पैसिव इनकम में डाल रहे हो. यहाँ पे वर्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो रेंट अगर एक्सपेंसेस में आ रहा है, दैट मींस आई हैव टू पे द रेंट. व्हाट इज 50-20-30 रूल? इस रूल को क्या नाम दिया गया है? टेल मी, इस रूल को क्या नाम दिया गया है? बजटिंग रूल. वेरी गुड. So we can have a round of applause that you are active listeners in front of me. So I'm getting a lot of answers. Thank you so much. Okay. The fourth pillar is understand the difference between saving and investing. I will give you a wonderful example. I have a piggy bank at my home. I used to save every day. Now you people have wallets. You save every day. You save monthly a small amount of money. Do we have a pocket or a piggy bank or a anything where my money is going to get double? ऐसा कुछ भी है क्या मेरा जहां पे मेरे पैसे डबल होते रहेंगे या बढ़ते जाएंगे? ऐसा कोई पिगी बैंक है क्या? I am the guest speaker, a resource person for you. If you have a piggy bank जहाँ पे आप 100 रुपए आज डालो और 1 साल के बाद 200 रुपए हो जाते हैं, तो प्लीज सेंड मी अ गिफ्ट. कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं. कोमल मैम, इफ एनी ऑफ योर स्टूडेंट हैव अ पिगी बैंक लाइक दिस जहाँ पे आज पैसे डाले और कल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो प्लीज उनका गिफ्ट मुझे ट्रांसफर कर दीजिए. वी डोंट हैव. तो सेविंग्स काफी है क्या? नहीं. सेविंग अकाउंट में पैसा रखना काफी है क्या? अगर आप सेविंग अकाउंट में बोलेंगे तो आपको स्टिल वहां पे 4% का इंटरेस्ट मिलता है, 4%. बहुत सारी बैंक्स ने तो अभी डिटोरेट कर दिया है, अभी 2.5% का भी इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन एटलीस्ट मेरे पैसे थोड़े तो बढ़ रहे हैं. क्या वो काफी है? उतना नहीं. बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं और इन्वेस्टमेंट में वाइसली कहीं करती हूं, तो वहां पे मुझे रिटर्न्स 10%, 12%, 15% मिल सकते हैं. नाउ यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन. ठीक है. फिफ्थ पिलर क्या है? अपना बजट बनाइए. मैं पूरा ओवरऑल समराइज कर रही हूँ. क्रिएट योर बजट, प्रायोरिटाइज योर एक्सपेंसेस, cut unnecessary expenses which you believe it is a want but it is your desire. Save for emergencies, because any emergencies can come at your place at any given point of time, which COVID have already taught us. Now invest for the future, which are the 6 sutras which I'm going to tell you. See, savings versus investments. What if you saved and invested 500 rupees each month? How much it will grow in 5 years, 10 years and 20 years? ये मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपके सामने रखा है. अगर मैं सेविंग अकाउंट में पैसे रखती हूँ तो 4% पर एनम मिलता है. और 500 अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करके बताऊं आपको, ये देखिए
500 रुपीज इन्वेस्ट किया है मैंने, 12 months in an year equals to 6,000, और उसको मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रख रही हूँ, तो कितना हुआ? 30,000। 30,000 मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और मेरे को 5 साल के बाद सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है? 33,259। बट यही मैं अगर निवेश कर रही हूँ तो मुझे 41,243। यही मैं जितना लंबा टाइम तक निवेश करते रहूंगी उतना मेरा पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा। 10 years 73,000, 10 years 1,16,169, 10 years 1,83,000, 10 years it's almost 5 lakhs. 15 years, sorry, 15 years it's almost 5 lakhs. It's your money, it's your decision. Take the decision wisely. You are investing and saving for 500 only. Now, 2 students in the same class investing the same amount of money. One is keeping in savings, the other is investing, and you can see a wider difference. 15 years after, the amount which you have saved in saving account, it is 1,83,000, but the amount if you invested the similar manner, it is reaching to 5 lakhs. Choices are always yours. Now, most important concept of the presentation is inflation. Inflation is nothing but, if I'll convert into Hindi, it is महंगाई दर. Or you can say in English, money is losing its value over a period of time. पैसा अपना मूल्य धीरे धीरे करके खोते जाएगा. कैसे? एग्जाम्पल बताती हूँ. ये देखो. In 2021, 2 kgs of rice was 100 rupees. Now, 1.5 kg of rice is 100 rupees. Will you eat less now? आपके घर पे ग्रोसरी कंपल्सरी 2 kg नहीं, मेरे ख्याल से 2 kg बहुत कम है. 10 kgs इन अ मंथ भी आता है बहुत सारे लोगों के घर पे 10 kgs ऑफ राइस. अब क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से 10 kgs नहीं आ पाएगा, 7 kgs आ पाएगा, तो आप चावल खाना कम कर दोगे. और पता है इंडिया में तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन. व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंक इन्फ्लेशन? किसी को पता है? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंक इन्फ्लेशन? ओके, मैं आपको बताती हूँ. I always purchase the things from DMart very quickly. मैं अपना प्रॉपर बजट बना के गई और मैंने क्विकली DMart से परचेसिंग करना शुरू की, which always everyone do. और अनफॉर्चुनेटली हम बजट बना के जाते हैं ग्रोसरी लेने का, बट हम एक्स्ट्रा स्टफ भी लेकर आते हैं. वो हमारी गलती है, बिकॉज हम वो आउट ऑफ बजट जाते हैं. ठीक है, चलो आप बहुत स्ट्रैटेजिक हो, आप स्टिक टू अपने बजट रहना चाहते हैं, बट कंपनीज भी बहुत 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 स्मार्ट है. उनको पता है कि इंडियन कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव. इंडियन कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव. और प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर लिया, बढ़ा दिया, हमको कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, हम क्या करेंगे? दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. अगर एक सोप ने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं दूसरा सोप खरीद लूंगी. एक फेस वॉश ने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं दूसरा खरीद लूंगी. तो उनको पता है कि हम ब्रांड लॉयल नहीं है, इसके लिए वो प्राइस ही नहीं बढ़ाते हैं. तो आप कहोगे मैम बहुत बढ़िया बात है, प्राइस बढ़ाते ही नहीं है सालों भर सालों, तो हम तो खुश हो जाएंगे. इन्फ्लेशन कहाँ हुआ अगर प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है? लेकिन पता है वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट का साइज छोटा करते जाते हैं. मतलब अगर मैं डव का सोप अज्यूम करती हूँ 2 साल पहले 40 रुपया था और 40 रुपए में मुझे 500 ग्राम्स का डव का सोप आता था. उसने पैकेजिंग सेम रखी है आज तक, 4 साल में कोई पैकेजिंग उन्होंने चेंज नहीं की है. लेकिन अब वो 500 ग्राम्स का सोप है ना, वो अब हो गया है 350. हम तो डीमार्ट जाके मैम ग्राम्स तो कभी हमने चेक किए ही नहीं. मतलब आप देख रहे हो 500 का 350 हो गया, मतलब 40% ऑफ द सोप इज गॉन. इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन. दूसरा एग्जांपल देती हूँ. we have seen Parle G biscuits. Till last year Parle G बिस्किट 5 रुपए का बड़ा वाला पैकेट आता था. अब मेरे को 10 साल से वही आदत है कि मॉर्निंग में उठ के पूरा पार्ले जी का पैकेट आई नीड टू फिनिश विथ माय कप ऑफ टी.
और अचानक से क्या हो गया, पार्ले जी ने क्या कर दिया, श्रिंक। 8 बिस्किट्स के जगह पे 4 बिस्किट्स कर दिए, लेकिन प्राइस वही 5 रुपए ही रखा गया। मेरी भूख आधी हुई क्या? मतलब मुझे अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए अभी मुझे 2 बिस्किट्स ऑफ पैकेट पार्ले जी लेना पड़ेगा, मतलब मेरा खर्चा डबल हो गया। पहले 5 रुपीज में आई कैन फिल माई एपेटाइट, नाउ आई हैव टू स्पेंड 10 रुपीज। तो हम हमेशा है ना क्या देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं और बोलते हैं कि प्राइसेस चेंज ही नहीं हो रहे, ले लो। बट हमने कभी भी बहुत सारी चीजों के, न सोप के न शैम्पूज के, उनकी बॉटल की साइजेस सेम है, उनकी पैकेजिंग सेम है, बट अंदर जो कंटेंट है जिसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो रिड्यूस डाउन हो गया है। दैट इज कॉल्ड एज श्रिंक इन्फ्लेशन। और ये इंडिया में ही चलता है बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है और हम देखते भी नहीं है। और इसकी वजह से आपको पता है आपका बजट हिल जाता है, क्योंकि आप वैसे मंथली 1 टाइम ग्रोसरी परचेसिंग करने जाते हैं, बट क्योंकि हर चीज का साइजेस रिड्यूस हो गई है तो आपको 2 बार ग्रोसरी परचेस करने जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली बजट जो बनाया था वो चल नहीं पाया और हम घर पे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वेस्टेज बहुत होता है, ये सारी चीजें बहुत होती है। But the point of inflation, Russia and Ukraine is having war. Am I doing anything? Is my country doing anything? But still we are suffering. US and Iran is having war. Still we are suffering in terms of LPG, in terms of crude oil. Are we doing anything as a country? No. But we are interrelated with each other. We import stuff from there. So whatever hazardous happen there, it will impact to my country as well. And it will increase. The prices will increase automatically. तो ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन इंडिया में 6 से 6.5% है। मतलब जो चीजें आप 2025 में 100 रुपए की खरीद पा रहे थे और अभी उन चीजों के लिए आपको शायद 107 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए, 120 रुपए देने पड़ेंगे। This is called as inflation. See, our cost of living, जो अपने खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ईयर वाइज ईयर, लेकिन हमारा वैल्यू ऑफ मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। आपने देखा होगा, आप हिस्ट्री के फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने रुपी को इतना ज्यादा डेप्रिशिएट होते देखा है। वी वेंट टू 96 रुपीज। बेटा वो नंबर में आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, 94 से 95 गया, 95 से 96 गया, बट हमारा रुपी है ना डेप्रिशिएट हो रहा है। नंबर के पीछे मत जाइए, उसके लॉजिक के पीछे चाहिए। तो जितना हमारा रुपी का प्राइस बढ़ेगा 96, 97, 98, उतना हमारी वैल्यू ऑफ रुपी कम होती जाएगी। तो हमने कभी भी आज तक 96 नहीं देखा था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी। 93 वाज मैक्सिमम, वी हैव सीन 96 इन दिस ईयर। तो सोचिए कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना गंदा हो रहा है हमारे ऊपर, और स्टिल हम लोग सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, एक्सपेंसेस के पीछे भाग रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना आप पैसा निवेश करते रखोगे, उसको बार बार विड्रॉ नहीं करोगे, तो मनी अर्न्स मनी। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। We are running a little short of time, so let's quickly move to the other parameter. Now, whenever you are making an investment, तो आपको सोचना है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब मुझे विद इन 1 ईयर उसको निकालना है, या मेरी ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, STI, तो STI इज ऑलवेज लेस देन 1 ईयर। ओके, लेस देन 1 ईयर। अगर वो मेरी मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म, ओके, देन इट इज बिटवीन 1 to 3 years। अगर वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो दिस इज मोर देन 3 years ऑनवर्ड्स। तो आपको डिसाइड करना है आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखिए। FD 1 ईयर का FD आता है, रिकरिंग डिपॉजिट 1 ईयर का आता है,
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो होते ही विद इन 1 ईयर आप विड्रॉ कर सकते हो। मीडियम टर्म में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स में, इंडेक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दीज आर इंश्योरेंस नीड। आफ्टर कोविड हमने समझ लिया है कि हमको मेडिकल इंश्योरेंस तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कब मेडिकल बिल्स क्या दिखा दें पता नहीं है, हमको भरने की कैपेसिटी भी नहीं होगी। इट्स बेटर मेडिकल इंश्योरेंस होना सबका बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें आप फैमिली इंश्योरेंस, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हो या इंडिविजुअल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारी एज 79 तक जा रही है, बट कुछ लोगों की एज 30 तक भी वाइंड अप हो जा रही है, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से वो सरवाइव कर सकते हैं। Okay, let's quickly have one more round of questions. 2 tips to increase your savings. ऐसा क्या करोगे जी आप जैसे आपकी सेविंग्स और इंक्रीज हो? क्विकली बताइए। Yes, yes, quickly you can unmute yourself and tell me ऐसी कौन सी 2 चीजें आप अपने लाइफ में इनकलकेट करोगे जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी? सब लोग हैं ना, कहाँ चले गए? कोई आवाज ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ मैम, हेलो। Yes, yes, tell me. इन्वेस्टमेंट मैम, इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे। सॉरी, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, पहले सेविंग्स तो बताओ, पैसे बचाएंगे कैसे? अपने खर्च को कम करके। हाँ, इनकम को कम करके और एक्सपेंस को भी कम करके, दोनों में हो सकता है ना मैम। एक्सपेंस भी कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा ना। पहले सेव करेंगे, उसी पैसों को तो इन्वेस्ट करेंगे ना। यस मैम। ऐसी कौन सी टिप्स है अपने डिजायर्स को, अननेसेसरी डिजायर्स को कट आउट करने का, और किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करने देना है। हम अपने ब्रेन को खुद ट्रेन करेंगे, वो हमारे ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकते। करेक्ट? यस मैम। What financial products you should invest in short term? अभी मैंने आपको बताया था कौन से प्रोडक्ट्स में हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब less than 1 year. FD. Very good. FD, RD, savings, and money market instruments. How much of emergency fund one should have? On an average हमको कितना इमरजेंसी फंड को रिक्वायर्ड है अपने घर पे रखना? पता है इमरजेंसी फंड पता है क्या होता है? कि हम अपने पैसे को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी लिक्विडेट कर दें। मतलब मैं ऐसे जगह, समझिए मैंने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसको बेचने के लिए ना मुझे 6 महीने 1 साल भी लग सकता है, लेकिन मेरे घर पे इमरजेंसी अभी है, मुझे पैसे अभी चाहिए, तो क्या मैं उसको बेच के लिक्विडेट कर पाऊंगी क्या? शायद नहीं। वहीं अगर मेरे पास गोल्ड है तो गोल्ड में क्विकली सेल ऑफ करके पैसे लिक्विडेट हो सकते हैं। वैसे ही मेरे पास शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं। मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से 3:30 तक, उसके बीच में मैंने शेयर्स को बेच दिया और कल मॉर्निंग 9 बजे से पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो इमरजेंसी फंड्स का मतलब ऐसे होता है कि आप निवेश ऐसी जगह पे कीजिए कि जब भी घर पे कोई इमरजेंसी हो आप उसको जल्दी से जल्दी लिक्विडेट कर पाए। लिक्विडेट मतलब क्या? उसको पैसों में कन्वर्ट कर पाए, विड्रॉ कर पाए और आप उसका यूज कर पाए। ऐसे नहीं पैसे हैं मेरे पास लेकिन फिर भी मैं उसको लिक्विडेट नहीं कर सकती हूँ और मैं बाहर से लोन लेने जा रही हूँ। व्हाट इज द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट? व्हाट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यू शुड इन्वेस्ट इन फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स अभी बताए थे। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म गोल? ETF. ETF और SIP. SIP, perfect. Equities, perfectly fine. Okay. मुझे है ना हमेशा एक कोई गोल बनाना है कि मुझे 5 साल बाद 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो उसको कैसे ड्राइविंग फोर्स बनाऊं? तो एक कैलकुलेटर आता है जिसको हम बोलते हैं TMV, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू 5 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए तो मुझे आज पैसे कितने बचाने पड़ेंगे वो TMV आपको खुद ही कैलकुलेट करके देगा। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं TMV कैलकुलेटर।
आपको अगर फ्यूचर में 50 लाख चाहिए, 20 चाहिए, 10 चाहिए, तो आज कितने निवेश करना शुरू करूं, वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। दूसरा अदर वे आउट भी पूछ सकते हो कि अगर मैं मंथली 5,000 रुपया निवेश कर रही हूँ तो 5 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, हम जितने यंग हैं उतना हमको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक पीरियड बच जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला 15 साल 20 साल का पीरियड होना चाहिए निवेश करने का, तो मैं जितनी ज्यादा यंग होंगी उतना ज्यादा निवेश मेरा बढ़ता रहेगा। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की 45-50 की एज में, जहां पे मैं रिटायरमेंट ले सकती हूँ, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लेट होने का मतलब है आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। अभी आप यंग हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नाइदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मॉम डैड, नाइदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, नाइदर यू आर मैरिड, तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपका पूरा सैलरी सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो आप उसको वाइसली यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपकी एज 25, 27, 30, तो ऐसा होगा कि आपके डैड रिटायर हो गए, तो अब डैड की सैलरी बंद हो गई, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। मे बी एट दैट एज आप शादी करो तो वाइफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू। तो क्या आएगा, जब हमारे डिपेंडेंट्स बढ़ते जाते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं कर पाते हैं जितना हम यंग में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, क्योंकि यंग होने की वजह से हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मेरे को कोई ऐसा खर्चा नहीं है कि जो मुझे ही करना है और कोई नहीं देगा। तो द यंग यू आर, इन्वेस्ट इन अ बेटर वे। So with this, I think so, Komal ma'am, can we wind up our session? Students can ask multiple questions if they want to. Yes, ma'am. And before winding up the session, you can go on SEBI's website for more knowledgeable information. You can download Sarthi app. This Sarthi app is dedicated by SEBI, which will enhance your knowledge. Completely free of cost है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर से तो इजीली मिल जाएगी, वरना आप सेबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सारथी ऐप के बारे में है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली ऐप है, आपको हमेशा अपडेट्स, नॉलेज, वहां पे हमने छोटे छोटे वीडियोस भी डाले हैं which will enhance your awareness level towards capital markets। और क्योंकि हम सेशन ले रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेनी है आप वहां से ले सकते हैं। एंड यस, और अगर मेरे बारे में भी चेक करना है तो सेबी वेबसाइट में आप लिख सकते हैं डॉक्टर भक्ति मुलचंदानी, वहां पे आ जाएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेनर। You can follow me on my LinkedIn profile named as Bhakti Mulchandani, and I generally keep posting the things related to financial markets, so you can get a visualization from there as well. Thank you so much. Thank you, We ma'am. are open for questions. If anyone wants to ask questions, they are open for asking questions. Okay, over to you, Komal ma'am. Okay, ma'am. Now we can conclude. With your permission and with the permission of principal, yes, we can go ahead with that if students do not have any questions. Okay, ma'am. Now we can conclude with formally vote of thanks. Thank you. Honorable guest, distinguished keynote speaker, Dr. Bhakti Mulchandani, respected faculty members, organizers, and my dear participants, good evening to one and all. As we come to the close of this highly insightful financial literacy workshop, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of Gurudev Paramedical College, Patna, National Stock Exchange, and Gyanansi LLP. First of all, I heartfelt thank you to our expert speaker, Dr. Bhakti Mulchandani, ma'am. Thank you, ma'am, for taking the time out of your busy schedule to share your valuable expertise with us today. Your clear and engaging presentation on personal finances has given us practical tools to build a more secure financial future. The live question answer session was deeply informative, and we are truly grateful for your guidance.
I extend our sincere gratitude to the National Stock Exchange, Gyan NC LLP, and Gurudev Paramedical College, Patna, for their constant encouragement and vision in bringing such value-adding opportunities to our academic community. A special words of thanks goes to the organizer, Dr. Bhagwan Acharya sir. And last but not least, my heartfelt thanks to all the students, faculty members, and working professionals who joined us today. Thank you once again, everyone. Have a wonderful evening. Thank you so much, ma'am, for your wonderful Thank vote you, of ma'am. thanks, and thank you Thank for you, ma'am. your coordination and cooperation with us. We'll stay connected with each other in the near future to explain Thank students you, ma'am. at multiple levels. Thank you, everyone, for your wonderful appreciation. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, guys.